Assalamu alaikum. Hello everyone, this is Zubair Ali S0234. Uh, I'm going to show you the second game with Blue Thompson, a very nice player. Uh, and the question mark has been removed from his rating, and the rating is still 1758. Uh, I told you that if the question mark was removed from his rating, it will still be like this because he's a very good player. An opening master, I can say. Uh, in the start, uh, Queen Gambit declines, and look at this. This is a trap where I fall into, and he took the advantage of it. And now what can I do? There is nothing if I didn't capture. What did I capture? What can I do? If that's a very big question in this move, think for 10 seconds and then tell me in the comment box that you find it or not. What was that move? Yep, that's the move I played in this game. I sack my queen for his two pieces, a knight and a bishop, and Will Thompson did this, and I didn't like it, and I was expecting this. This can be a deadly move for the middle game, but I know his weakness already in the previous game, so I did this. Sorry, the game didn't end like this. Yep, from here. Uh, yep. Now there's a threat of checkmate, but I managed to uh, get my bishop here, and then he started attack. Again, this is the second attempt, but I was not shocked in this attempt because I'm ready for it. Now this is a very deadly move, but still it's a weak move. So I took the advantage of it. And in this game, I decided to not to exchange my pieces, and that's what I have done. I didn't exchange any of my pieces because his queen was in the board. His queen is in the board. Uh, so that's the reason I was not trying to uh, exchange any of my pieces, and this uh, decide this what can I say, this decision gave me a huge opportunity to come back in the game, and that's the comeback. Now the reason of this knight here is to fork, but Blue Thompson uh, he can't see it because he was expecting this knight for his pawn. Now he can't push his pawn here. He will lose his rook. He will lose his pawn. So he decided to take an other advantage. He decided to take this pawn, but he didn't saw this and lost his queen. And I was back in my game. Now this is a force to take, and now this is also force to move the rook. And he took my pawn where he was for, and this is a checkmate. Lost his game. So endgame weakness is shown in the middle game. Last in the last game, in the end, he did a mistake, and that also was unexpected. Like this move, this is an unexpected move. This was not coming, but he didn't saw it. So I was shocked. Okay, what is going on? He didn't saw it actually, and then he didn't saw this also. I saw this,
and I select my queen. Yep, I saw this. Sorry, I saw this before this move, but he didn't saw any of his weak moves. Two mistakes here, and he lost his game. This is the end of this game. Uh, Blue Thompson is 1758, and I don't know. After this game, definitely he's going. After maybe 10 or 20 games, he'll be on 1800 or 1850. He's a very good player. He has he has to work on his end game and the middle game. Because the middle affect the end game. So this is a game. अब उर्दू में आते हैं. इस गेम में क्वीन गैम्बिट डिसलाइन खेला गया. यहाँ पर मेरे अपोनेंट ने ये बड़ा ट्रिकी बहुत ही ट्रिकी था ये, और ये जो है ये चेकमेट की थ्रेट थी पक्की. तो मजबूरन मुझे इसका घोड़ा मारना पड़ा, वो भी रानी से. और जब इसने रानी को खाया तो फिर मैंने इसका ऊँट ही खा लिया. इससे क्या हुआ, इसके 2 पीस जो है वो एक्स्ट्रा मेरे पास आ गए रानी के बदले में. मतलब वो 2 पीस डाउन हो गया. अब इस गेम के अंदर मुझे करना ये था, ये जो मैंने कैप्चर किया था, कैप्चर करने से पहले सोच लिया था कि हाँ इसके 2 पीस डाउन करूँगा और इसके बाद अपना कोई पीस एक्सचेंज नहीं करूँगा. लेकिन फिर भी एक पीस मेरा एक्सचेंज हुआ, मेरा घोड़ा एक्सचेंज हुआ. मेरा चल कोई नहीं, एक घोड़ा और है, बात बन जाएगी. फिर ये ऊँट को जब यहाँ निकाला तो इसको यहाँ इसलिए निकाला था क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर अब रानी आएगी इसके नीचे, जैसे कि ये आई, और फिर मैंने इसको पीछे कर दिया क्योंकि ये आया इसीलिए यहाँ पे था. मुझे इसको बादशाह के आगे वाले टुल्ले पे रखना था और फिर मैंने इसको यहाँ रख दिया. तो ये मूव पहले से डिसाइड करने पड़ते हैं कि बादशाह को किस तरह से बचाना है, वरना ये पक्का चेकमेट हो जाता. किस तरह, अगर मैं इसको यहाँ नहीं लाता, खाली यहाँ भी रख देता और फिर ये इसे यहाँ लाता, तो फिर मैं इसको यहाँ ला सकता था. ठीक है, लेकिन अगर मुझे नज़र नहीं आता तो मैं ये कर देता कि चलो यार घोड़े को फ्री करो, टुल्ला निकालेगा, उसके बाद फिर ये हो सकता था. ठीक है, तो अब तो कोई पीस नहीं है सामने, तो मुझे मजबूरन यहाँ करना पड़ता और बस यहाँ मेरा काम ख़त्म, गेम फिनिश, अब कुछ भी नहीं हो सकता. तो इस ऊँट को पहले यहाँ पे रखने का मकसद यही था कि इस थ्रेड को रोका जा सके फॉर दिस. और जब ये थ्रेड रुक गई तो फिर मैंने अगले मूव का इंतजार किया, और यहाँ पर इसने मिस्टेक कर दी दोबारा, जैसे कि पिछली गेम के अंदर भी इसने की थी. इसने अपना घोड़ा भूला था. इस गेम के अंदर ये अपना ऊँट जो है वो दे बैठा. और ऊँट क्यों दे बैठा, तो जैसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये आ सकता था. तो ये वीक मूव ही था, इसको यहाँ रखने का कोई मकसद ही नहीं था. इस ऊँट को यहाँ से हटा लेना चाहिए था जब ये मूव आया था, तो ये वो सिंपली सेव हो जाता, उसके बाद कुछ और कर सकते थे. लेकिन इस ऊँट को यहाँ छोड़ना ये भी एक बेवकूफ़ी थी. ये मिडिल गेम जब वीक होती है बंदे की तो एंड गेम पे उसका इफेक्ट पड़ता है, और इस गेम में भी यही हुआ. और यहाँ पर जो ये फॉग बन गया, हालांकि फॉग बनना नहीं चाहिए था. इसको बस सिंपली जो है अपनी ये रानी उठा के और कहीं भी रख देता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख देता. इसको यहाँ रख सकता था, अगर ये मूव आ जाता तो कोई बात नहीं. और सिर्फ इसको जो है क्या कहें मैं, ये मूव आने के बाद वाइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे रख सकते थे, फिर ये आ सकता था, ये कर सकते थे. तो इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं था. अगर ये जाता तो चलो खैर है, एक पीस आपको एक्सचेंज में तो मिल गया. या इसके ऊपर पहले ये कर सकते थे, ये हटता यहाँ से, उसके बाद इसको कैप्चर कर सकते थे, एक थ्रेड बन जाती. फिर से गेम हट गई. बस फिर ये एक मिस्टेक थी, इसको यहाँ रखना, और मैंने फॉक किया, रानी उड़ाई, बिना रानी के खेल रहा था और फिर सामने वाले की रानी उड़ा दी. और फिर ये क्रेडिट ट्रैप मैंने बनाया, इकलौता ट्रैप बनाया पूरे गेम में मैंने, और फिर ये देखें चेक मैच. तो रानी ज़रूरी नहीं है कि रानी है तो गेम जीता जाएगा. नहीं जी, आपके पास पूरी टीम होनी चाहिए, जैसे क्रिकेट टीम होती है, फुटबॉल टीम होती है, हॉकी टीम होती है, इस तरीके से चेस में भी ये जो सारे पीसेस हैं एक टीम है. तो अगर टीम के साथ नहीं खेलोगे तो फिर तो हारना पक्का है. तो जिस तरह वो टीम गेम है, इस तरह इस बोर्ड पर ये जो सारे पीसेस पड़े हुए हैं ये पूरी एक टीम है, और इस पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है.
और जब ये साथ चलते हैं तो फिर गेम कुछ इसी तरह चलता है, क्योंकि इन सबको मिलकर चलना होता है। अकेली रानी को कितना दौड़ाओगे यार, दौड़ा के आखिरकार तो वो भी थके हार जाएगी। लेकिन टीम होगी तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये टीम वर्क था। ये ख़त्म। एक ने दूसरे प्लेयर को भगाया, दूसरा प्लेयर कहीं और भागा, और पहले वाला प्लेयर वापस अपनी जगह पे आ गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये गेम पसंद आया होगा। और सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं रात को जल्दी सो गया था, मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन ये वाली गेम की नहीं बनानी थी। ये गेम तो मुझे पता भी नहीं था कि ये गेम इस तरह चलेगी। ये मेरे फ्रेंड बेल्जियम में है, वहाँ पे रात के 23 बज रहे हैं। अब 23 बजे का मतलब तो खैर मुझे नहीं पता कि 23 बजे क्या होता है। 24 में एक दिन पूरा हो जाएगा, तो वहाँ पे तकरीबन 11 बज रहे हैं शायद। 11 या 12 बज गए होंगे वहाँ पे रात के। और हमारे यहाँ तो अभी सुबह होने वाली है माशाल्लाह। और माइंड बड़ा फ्रेश था, और उसका माइंड जो सो रहा था। तो चेस में फ्रेश माइंड के साथ खेलना भी थोड़ा फ़ायदा दे जाता है। मैंने उसे लिखा था कि मैं इस वक्त फ्रेश हूँ और मेरा दिमाग मैग्नस की तरह काम कर रहा है। और फिर बस अनएक्सपेक्टेड मूव स्टार्ट हो गए, और बस ये चेकमेट। बहुत ही अच्छा गेम था। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, आई लाइक हिम। आई डेफिनेटली go for another game with him. And this video is made for him in English. I'm very weak in English. I can write and read, but I can't talk like that in their language. So this was the game. I hope people like it. Now the or first time on this series, I'm going to tell you that please subscribe, like, share. Uh, Nothing else to say. Uh, Bye for now. Uh, next time I'm coming with one more video. I'm going